गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं और हमने ग्रुप 15 पढ़ लिया था। ग्रुप 16 में हमने लास्ट टाइम डाईऑक्सीजन दैट इज़ O2 पढ़ा था एज वेल एज ऑक्साइड्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओजोन। Ozone, you know, it is present in the upper atmosphere of our earth, and it prevents the passage of harmful UV radiations through itself, and thereby protecting the you can say the inhabitants of earth. So ozone is that way, it is very useful for us. ओजोन की प्रिपरेशन सबसे पहले हम पढ़ें। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, it is prepared by passing silent electric discharge through pure and dry oxygen. मीन्स हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसे कहते हैं? द स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. No sparks are produced. It produces less heat and it is sparkless, and thereby it prevents the rise of temperature, which may decompose ozone back into oxygen, because conversion of ozone to oxygen and oxygen to ozone is a reversible reaction. तो इसीलिए हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भेजते हैं, स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज़ करते हैं ताकि टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना करे, क्योंकि टेम्परेचर राइज करेगा तो इट विल ओजोन विल अगेन डिकम्पोज टू गिव बैक ऑक्सीजन. सो 3O2 when we pass it is we have to put the sign of reversibility. Silent electric discharge, 3O2 will change into 2O3. This is endothermic reaction. Del H is positive. It's plus 142 kilojoules per mole. So this conversion of oxygen into ozone is carried out in an apparatus which is known as ozonizer. ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट the conditions for better yield of ozone is that temperature should be low. Second thing, sparklet discharge is produced, oxygen should be pure and dry, and there should be no moisture. So this is the preparation. Now come to the properties. Properties से पहले हम structure एक बार जान लें. ओजोन का structure है 2 oxygen atoms are joined by double bond, and a third one is joined through a dative bond, coordinate covalent bond, this way. All right, this is it. So a double and single bond, this is a resonance hybrid. This is a resonance hybrid of two structures. एक में double bond है, यहाँ single bond है, and then the positions will interchange in this way. So you can see that the actual structure consists of ऐसे नहीं, consists of bonds which are partial double and partial single bond, this way. All right, so this is the structure of ozone. Now come to the properties of ozone. Ozone is a light blue gas having a pungent smell, and जब इसको कंडेंस करते हैं तो ये डीप ब्लू लिक्विड के रूप में कंडेंस होती है. स्लाइटली सॉल्युबल है ये वाटर में. पॉइजनस है, इट इज़ पॉइजनस इन नेचर बिकॉज इफ़ यू इनहेल इट इन लार्जर अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में भी इनहेल करोगे तो इट प्रोड्यूसेस सीवियर हेडेक, बट इफ़ यू इनहेल इट इन लार्जर अमाउंट देन it may be fatal. Now come to the chemical properties. Ozone
easily decomposes. Decomposition हम देखें at room temperature only, ozone decomposes at ordinary temperature O3 to give to oxygen. हीटिंग करने पे डिकम्पोजिशन इज़ क्वाइट फास्ट, और इसकी वजह से ओजोन जो है नेचुरल, आई मीन ऐसे भी ओजोन इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की देखें, इट इज़ अ powerful oxidizing agent, even more powerful than oxygen, because it decomposes to give O3 plus nascent oxygen. This nascent oxygen, atomic oxygen, is highly unstable and it immediately combines. That makes ozone you can say a very powerful oxidizing agent. तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हम कुछ पढ़ें. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑक्सीडेशन विथ मेटल्स, it combines with mercury, it oxidizes mercury to give Ag2O plus O2. Similarly, it combines with your silver, it oxidizes silver to give Ag2O plus O2. जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है उसमें ओजोन जब उनको ऑक्सीडाइज करता है ना, किसी भी मेटल को, नॉन मेटल को, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन ये तो यूज्ड हो जाता है ऑक्सीडाइज करने में, और ये ऑक्सीजन साइड प्रोडक्ट के रूप में निकलता है. ये याद रखना, जब भी रिएक्शन लिखोगे O2 साथ में इट इज़ एलिमिनेटेड. फिर हम देखें कि ये मेटल्स को भी, नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करता है. जैसे मॉइस्ट आयोडीन को I2 plus H2O plus O3, it oxidizes to give HiO3, iodic acid plus O2. Similarly, it oxidizes sulfur to give sulfuric acid, S1/8 S8 plus H2O plus O3, moist. So it gives H2SO4, oxidizes sulfur to sulfuric acid plus O2. It oxidizes P4 also, 1/4 P4 plus H2O plus O3. It gives H3PO4, और ये फॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है plus O2. It oxidizes compounds also, oxidation with of compounds. 3-4 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होंगी, अगर आए तो आप लिख सको. जैसे इट ऑक्सीडाइजेज पीबीएस को ऑक्सीडाइज करता है जब ये O3, इट चेंजेस इनटू PbSO4 प्लस O2. इट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड सॉल्ट, कोई भी आयोडाइड, या फिर तुम लिखी दो Ki प्लस H2O प्लस O3. इट ऑक्सीडाइजेज इट टू KOH प्लस O2 प्लस I2. फेरस सॉल्ट को ये फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, Fe2 प्लस प्लस H प्लस प्लस O3. इट चेंजेस इनटू Fe3 प्लस प्लस H2O प्लस O2. नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रेट में, NO2 माइनस प्लस O3. इट गिव्स NO3 माइनस नाइट्रेट प्लस O2. So these are the oxidizing properties of ozone. Ozone uses, देखोगे तो ozone is a bleaching agent. It has a bleaching action because ये जो nascent oxygen देता है, bleaching property, ये जो nascent oxygen देता है, ये क्या करता है कि it decolorizes the colored substance. O3 gives nascent oxygen O2 plus O, and this O जो है ये colored, कोई भी coloring substance है, plus O, it changes into colorless. The oxidized form is colorless. So it has a bleaching action. ये ब्लीच करने के काम में आता है delicate articles, fabrics, oils, etc. Because it is also used as a disinfectant.
it is disinfectant, germicide. It is used for purifying drinking water. It is used to purify air also in hospitals, railway tunnels, cinema houses. जो स्लॉटर हाउसेस में एक डिसएग्रेबल स्मेल, एक बैड स्मेल जो आती है, उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओजोन. नाउ वी विल बी कमिंग टू ऑक्सीजन हो गया हम. नाउ वी आर कमिंग टू सल्फर. Sulfur is the second element of second, I mean in order it comes after oxygen, so second element in this group. And sulfur जो है ये occurrence अगर हम देखें, occurrence, so it occurs in free state as well as combined state. Free state में sulfur occurs in those places which are known for their volcanic eruptions. volcanoes जो होते हैं, ज्वालामुखी जब फटती है तो अंदर से सल्फर का डिपॉजिट निकलता है मोल्टन स्टेट में, येलो डीप, आई मीन येलो कलर का निकलता है. तो इसकी ज़्यादातर डिपॉजिट्स जो है इन एलिमेंटल स्टेट, इन सल्फर के फॉर्म में ही ये वोल्केनिक रीजन्स में ज़्यादा होते हैं, जैसे सिसिली है, इटली है, साउथ अमेरिका है, जापान है, रशिया है. दे आर हैविंग दोज you can say sources of sulfur, elemental sulfur is present there. सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट सल्फर का जो है लुसियाना एंड टेक्सास जो यूएसए में है वहाँ पर है. इंडिया में तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ ज्वालामुखी फटती है वहाँ पे एलिमेंटल सल्फर डिपॉजिट्स आर देयर. एलिमेंटल स्टेट में सल्फर इज़ फाउंड इन फॉर्म ऑफ sulfide minerals like iron pyrite, copper pyrite, PbS जो कि गैलेना कहलाता है, zinc blend that is ZnS, HgS is cinnabar. ये सब सल्फाइड्स है. अनसल्फेट्स के रूप में भी ये एग्जिस्ट करता है. जिप्सम दैट इज CaSO4, फिर इप्सम सॉल्ट MgSO4 7H2O, ये सब है. सल्फर शोज एलोट्रोपी. सल्फर शोज एलोट्रोपी मीन्स एलोट्रोपी आपको पता होगा, दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच आर केमिकली सेम बट दे हैव गॉट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. तो सल्फर जैसे कार्बन एलोट्रोप्स के रूप में डायमंड, ग्रेफाइट, कोक, कोल, लैम ब्लैक, ये सब जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स है, वैसे सल्फर भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. मेनली सल्फर की जो है 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं. दे आर रोम्बिक सल्फर, इसको अल्फा सल्फर भी कहते हैं. देन मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको बीटा फॉर्म भी कहते हैं, बीटा सल्फर. एंड प्लास्टिक सल्फर. The most stable form of sulfur is rhombic sulfur. Rhombic sulfur अगर सल्फर का स्ट्रक्चर देखोगे तो rhombic sulfur इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, पकड़ विंग स्ट्रक्चर ऐसे. 8 sulfur atoms are there in this way. 8 sulfur atoms are there in this molecular form. ये है तुम्हारा रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर. मोनोक्लिनिक सल्फर का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है बट इट हैज़ अ लिटिल एसेट मॉलिक्यूल में ही रहता है, पकड़ विंग स्ट्रक्चर ही होता है, थोड़ा सा सिमेट्री में डिफरेंस होती है और कुछ नहीं. प्लास्टिक सल्फर में ये पूरा रिंग स्ट्रक्चर खुल जाता है. द सल्फर एटम्स आर रैंडमली जिगजैग चेन्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, लॉन्ग इंटरवेंट जिगजैग चेन्स ऑफ सल्फर एटम, वो होता है प्लास्टिक सल्फर में. ऑलराइट, सो ये सब सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हुए. अब हम आ जाए सल्फर के कंपाउंड्स में. वन इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2. सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज़, यू नो दैट इट इज़ अ मेजर एयर पोल्यूटेंट. जो गैसेस मैक्सिमम एयर पोल्यूशन करती हैं उनमें सबसे ऊपर अगर आता है तो SO2 एंड NO2, ये 2 हैं गैसेस.
विच आर द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर में ये प्रेजेंट रहता है जब व्हीकल्स वगैरह से, और ये सबसे जब इग्निशन होती है तो ये एलिमिनेट होता है, वी लिबरेट करता है, और फिर एटमॉस्फेयर में ये SO2 के रूप में रहता है। फिर ये मॉइस्चर से, रेन वाटर से में डिज़ोल्व होकर के ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, और जो कि एसिड रेन कॉज करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी इट हैज़ अ टॉक्सिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। सल्फर डाइऑक्साइड भले ही टॉक्सिक है मगर फिर भी इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर डिफरेंट अदर कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या प्रिपरेशन के क्या मेथड्स हैं। एक तो सिंपल मेथड बाय बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर, व्हेन यू बर्न सल्फर और सल्फर कंटेनिंग ओर्स जैसे पायराइट्स को भी बर्न करने से सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। जैसे कि सल्फर को सीधे बर्न किया S+O2 गिविंग SO2, और अगर कोई सल्फाइड ओर्स को अगर हम रोस्ट करते हैं, सल्फाइड हो जैसे ZnS+O2, इट गिव्स ZnO+SO2 रोस्टिंग करने से। PbS+SO2 +O2, इट गिव्स PbO+SO2। Iron pyrite Fe2+O2, it gives Fe2O3 plus SO2. So sulfur dioxide gas is prepared in this way also. And in lab method क्या है? In lab sulfur dioxide gas is prepared by reacting, by you can say heating sulfur with Kong sulfuric acid। सल्फर को H2SO4 से हम अगर ये करेंगे तो इट गिव्स यू H2O+SO2। कॉपर को अगर हम हीट करेंगे कॉन्क H2SO4 से तो इट विल गिव CuSO4+H2O+SO2। लैब मेथड है। So these are the ways of preparing sulfur dioxide gas. Now we will be coming to the properties of sulfur dioxide। Physical properties देखोगे तो it has a color, it is a colorless gas with a pungent smell, very suffocating smell। colorless pungent gas, highly soluble in water में डिजोल्व करता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको सल्फर डाइऑक्साइड का बताया ही है, बेंट स्ट्रक्चर है सल्फर डाइऑक्साइड का। S इस तरह से, बट इट हैज़ अ रेजोनेंस, इट एग्जिबिट्स रेजोनेंस इस तरह से। पार्शियल डबल एंड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, दोनों बॉन्ड में इक्वल है। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, sulfur neither burns nor helps in burning, but certain metals they continue to burn in sulfur dioxide gas because of the reaction। ये मैग्नीशियम, अगर बर्निंग मैग्नीशियम को हम SO2 गैस के एटमॉस्फेयर में ले जाएंगे तो इट विल कंटिन्यू टू बर्न फॉर्मिंग MgO प्लस MgS, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम सल्फाइड। वैसे ही पोटेशियम, बर्निंग पोटेशियम विल कंटिन्यू टू बर्न इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिविंग K2S या K2SO3 बन जाता देता है प्लस K2S2O3 थायोसल्फेट।
sulfur dioxide is an acidic oxide. It combines with water to give sulfurous acid, H2SO3. sulfurous acid. Alright. सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी एक प्रॉपर्टी है, it exhibits both oxidizing as well as reducing property. It acts both as oxidizing agent as well as reducing agent. इसकी reducing properties हम देखें, 2-3 reducing properties आप याद कर लेना and learn 2-3 oxidizing properties also. Reducing properties. Reducing properties, sulfur reduces potassium permanganate, acidified potassium permanganate, like KMnO4 plus H2O plus SO2. It gives K2SO4 plus MnSO4 plus H2SO4. It also reduces potassium dichromate, K2Cr2O7. यहाँ पे लिखती हूँ मैं, K2Cr2O7 plus H2O plus SO2. ये H2O plus या H2SO4 acidified है ना, H2SO4 plus SO2. What does it give? K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus H2O. It oxidizes, it reduces ferric to ferrous, like ferric sulfate, Fe2SO4 whole thrice. Ferric sulfate plus SO2 plus H2O. It reduces it to ferrous sulfate, FeSO4 plus H2SO4. So these are the reducing properties of sulfur dioxide gas. Now come to the oxidizing properties. ये oxidizing properties. अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जैसे H2S को ये ऑक्सीडाइज कर देता है प्लस SO2, इट गिव्स H2O प्लस S. इट ऑक्सीडाइजेज, मैंने अभी बताया था कि मेटल्स इसके प्रेजेंस में बर्न करते रहते हैं, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है. इट फॉर्म्स MgO प्लस MgS. Fe plus SO2 gives FeO plus FeS. So these are the oxidizing properties of sulfur dioxide gas. Sulfur dioxide gas also has a bleaching action, ओजोन की तरह ब्लीचिंग एक्शन. इसकी ब्लीचिंग एक्शन क्यों होती है कि जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, एंड सल्फ्यूरस एसिड जो है इमीडिएटली ये रिड्यूस होकर के ये सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है और नेसेंट हाइड्रोजन देता है. तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल वे में लिखिए, सिंगल लाइन में H2O प्लस SO2, इट गिव्स H2SO4. It gives H2SO4 plus नेसेंट हाइड्रोजन. ये जो नेसेंट हाइड्रोजन जो है ये कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में बना देता है. कलर्ड सब्सटेंस या कलर्ड मैटर प्लस H, इट मेक्स इट कलरलेस. मीन्स ओजोन के और सल्फर डाइऑक्साइड के ब्लीचिंग एक्शन में क्या अंतर है कि ओजोन ब्लीचेस बाय ऑक्सीडेशन एंड दिस
Sulfur dioxide bleaches by reduction. This bleaching is temporary. ये ब्लीचिंग टेम्पररी होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, क्योंकि जैसे ही उसको हम एयर में एक्सपोज करते हैं वो उस एयर में ऑक्सीजन है जिसकी वजह से फिर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एंड इट गिव्स बैक इट्स कलर. So this is about sulfur dioxide gas. Now come to oxyacids of sulfur. Next we will study.